Good morning, students. I am Anil Kumar Swai, and I am your English teacher, and I am standing before you to present GKRV online classes. Students, as you know that in the last class we have read the course book, and the name of the poem was "If Mice Could Roar." I hope you would have understood the poem and gone through it yesterday and try to solve the exercises. Now we will come to the grammar book. Tune into grammar. The name of the book is Tune into Grammar, and you all know that we have already studied the first chapter, and that is the alphabetical order. The second one is the sentence. Students, what do you mean by a sentence? What makes a sentence? If I speak something, that is it a complete sentence? Can we regard it as a complete sentence? That we will study in this chapter. Listen carefully. So first of all we will know that the definition of sentence. What is it made up of? Then listen. A sentence is an arrangement of group of words that makes complete sense. Students, here you refer to these words complete sense. It is the most important part of the sentence definition, that a sentence is an element of group of words. Students, it is not just a word, not just an alphabet, not just a phrase, but a group of words that makes complete sense. Means, I can prove it with the help of an example that we are studying in Gyan Jyoti Kanchanman Prasikla Vidyalaya. I study in GKRV. That is a complete sentence. But if you will say, I football, live, play, field, evening, is it a complete sentence? These are the group of words. They are in jumbled form. We have to rearrange them in a complete manner. Then only it will be a complete sentence. It may be in the question mark, there will be an exclamatory, but it must be complete in its sense. Then the next one is, students, it begins with a capital letter and ends with a full stop. It's true. Now you can see here, I is a capital letter and ends with a full stop. I have put full stop here and here. Means there are three sentences here. I have made an arrow mark. Don't think that this is not a sentence. Without writing the numbers, I have written the arrow mark 1, 2, and 3. It always has a verb. Students, there are three sentences here. First of all, there is definition. Then there is a capital letter. It starts with a capital letter. It begins and ends with a full stop. And the last one, it always has a verb. Means every sentence has a verb. तो बच्चों, अभी मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्या आपने समझा है सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? किसको हम वाक्य बोलते हैं? अभी मैं दो तीन जो वर्ड बोल दूंगा, सब बोलने से क्या वो वाक्य हो जाएगा? क्या नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एक वाक्य जो है वो कुछ वर्ड शब्दों का समूह होता है, जिसका जो मीनिंग होता है वो एक कंप्लीट सेंस में, मतलब उसका मीनिंग होना चाहिए। वो जो शब्दार्थ, जो टोटल सेंटेंस, जो वाक्य है, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद कोई भी वाक्य शुरू करने से पहले उसके पहले का जो लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए और आखिरी में एक फुल स्टॉप होना चाहिए। तभी जाके हम सोचेंगे, मानेंगे कि वो एक सेंटेंस है। ठीक है बच्चों। फिर जो आखिरी लाइन है, हर एक सेंटेंस में, हर एक वाक्य में एक वर्ब होता है। तो ये हो गया सेंटेंस का डेफिनेशन, और ये जान गए हम लोग कि सेंटेंस कैसे शुरू होता है और कैसे होता है। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आपके बुक में, जो ग्रामर बुक में ज्यादातर शुरुआत दौर से ही बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। तो बच्चों, उसको हम अभी कोशिश करेंगे। जब तुम इससे बड़े हो जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, तब तुमको सेंटेंस का टाइप्स पता चलेगा। वैसे तो बच्चों सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, एसर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, बहुत सारे सेंटेंस हैं। लेकिन ये सब तुम बच्चे बड़े होके
5वीं या 6वीं क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए इतना जानना जरूरी है, कोई भी शब्दों का समूह को अगर हम पूरा कंप्लीट करते हैं, उसका कोई मतलब निकलता है, तभी जाके वो एक वाक्य कहलाएगा। अगर उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थहीन है वो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो कभी वाक्य नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, ये हो गया सेंटेंस का सेंटेंस का डेफिनेशन, जिसको हम वाक्य बोलते हैं। हिंदी में भी तुम लोग इसको समझ सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुमको ये समझ में आया होगा। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइजेस। Students, now we will go through the chapter. So please take out your textbook while you are going through this video. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो बुक अपने पास रखें, तभी जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, उसको रिफर कर सकते हैं आप। सो ये जो ग्रामर का दूसरा चैप्टर है द सेंटेंस, वो बच्चों पेज नंबर है 8, पेज नंबर 8 में है। ये देखो, मैं तुमको कैमरा के सामने दिखा रहा हूँ, ये है सेंटेंस का चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसमें करना क्या है। नो रीड दिस एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे आज। आई लव माई फ्रेंड्स, चिल्ड्रन एंड प्लेइंग, दिस इज माई न्यू पैट। ये सब कुछ सेंटेंसेस है, इसका पूरा मतलब निकलता है पूरा कंप्लीट सेंस में, तो इसको हम बोल सकते हैं सेंटेंसेस। उसके बाद देखो बच्चों, लर्न, पेज नंबर 9 में दिया गया लर्न, क्या क्या है इसमें, टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ 12 सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि कंप्लीट है, जो भी बिल्कुल नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले स्वीट ऑरेंज नहीं होगा, उसको टिक मार्क करना है बच्चों। उसके बाद लव्स क्रिकेट प्लेइंग राहुल, ये नहीं होगा क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। द डोर इज क्लोज्ड, हाँ ये हो सकता है, इसको हम टिक मार्क करेंगे, जैसे आप भी कर सकते हो। देन मिस्ड लंच नहीं, श्रीन एट 8 एन एप्पल, 5वां नंबर जो है वो हो सकता है। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, ये भी हो सकता है सेंटेंस। अंकल माय टीचर इज, ये नहीं, 8 नंबर भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं। इन द पार्क नहीं होगा। फिर सबसे 12 नंबर बच्चों, सबसे आखिर में जो है 12 नंबर, आई हैव अ पेट डॉग, इसको टिक मार्क करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ऐसे 4-5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक कंप्लीट सेंस निकलता है, और सब नहीं होगा। बहुत इजी है। इसका मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक मतलब निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस, अथवा वो और सेंटेंसेस नहीं कहलाएंगे, उसका मतलब सेंटेंस नहीं होगा, पूरा वाक्य नहीं होगा बच्चों। फिर उसके बाद देखो प्रैक्टिस, अरेंज दिस वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, रिमेंबर टू यूज देयर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। बच्चों यहाँ भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दिया गया है ऑब्लिक करके, उसको हमको सही ढंग से सजाना है, जिसके द्वारा वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे क्रिकेट ऑब्लिक रैक्स ऑब्लिक इवनिंग एंड एवरी गेल प्ले। यहाँ एक पूरा लंबा चौड़ा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए, तो उसको हम कैसे सजा सकते हैं बच्चों। देखो, गेल एंड रैक्स प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, समझ में आया दोस्तों। गेल एंड रैक्स प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। देन उसके बाद बच्चों, स्कूल ए लाइब्रेरी माई बिग हैज, माई स्कूल हैज ए बिग लाइब्रेरी, समझ रहे हो आप। माई स्कूल हैज ए बिग लाइब्रेरी मतलब मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। फिर बच्चों देखो उसके बाद, जैक ही लव द जिल एंड डुगेट, ये बच्चों बहुत ही पुराना एक पोयम है, जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल। ओके, यही है यहाँ पे, इसको हमको यहाँ लिखना है। देन लेक्स नैनीताल 9 हैज, नैनीताल एक बहुत अच्छी जगह है उत्तराखंड में, नैनीताल हैज 9 लेक्स। तो बच्चों उसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 10 में, एनिमल फेथफुल द इज ए डॉग, द डॉग इज ए वेरी फेथफुल एनिमल, उसको हमको यहाँ पे लिखना है। फिर बच्चों उसके बाद, मस्ट हेल्दी वी टू स्टे इट स्ट्रॉन्ग, वी मस्ट ईट हेल्दी टू स्टे स्ट्रॉन्ग। बच्चों इसका मतलब क्या है, हमको अगर मजबूत रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, सजग रहना है, तो हमें हमेशा अच्छा खाना पड़ेगा। ये हो गया उसका मीनिंग। देन बच्चों, योर दिस पेन इज, यहाँ पे देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है इज दिस योर पेन, वो कोई हमसे पूछ रहा है पेन दिखा के, इज दिस योर पेन, तो वहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये भी क्वेश्चन मार्क होने के बावजूद भी ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और कंप्लीट सेंस में आता है।
फिर बच्चों और 2 दिन तो जो है और जो बच गया है वो मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग अपने आप से कर पाओगे। फिर बच्चों उसके बाद देखो मैच द फॉलोइंग है, बी ऑप्शन बी, मैच द कॉलम्स टू मेक सेंटेंसेस। वो मैं कुछ तुमको बताऊंगा, कुछ आप लोग अपने तरीके से कर लेना। साइंस इज माई, देखो यहाँ पे साइंस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ऑप्शन डी, साइंस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ये पूरा कंप्लीट सेंस बताता है कि साइंस जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फिर बच्चों देखो आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले क्या है, आई लाइक टू प्ले ऑन वीकेंड्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो वीकेंड्स हम शनिवार रविवार को ज्यादातर वीकेंड्स बोलते हैं। यहाँ जो लड़का या लड़की जो भी है वो बोल रहा है कि मुझे वीकेंड्स में सैटरडे संडेस में खेलना बहुत पसंद है। देन माय फादर वर्क्स इन कॉलेज, मीन्स मेरे पिताजी कॉलेज में काम करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों दिल्ली में बेंगलुरु, बेंगलुरु बच्चों एक जगह है, एक बहुत बड़े शहर का नाम है, कर्नाटक के राज्य के राजधानी का नाम है। देन आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, बच्चों आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो, कोई 7, 7:30, 8 बजे, कोई सुबह जल्दी भी कर लेता है। तो यहाँ बोला गया है आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। फिर बच्चों माई ब्रदर डजंट टेल लाइज, मतलब मेरा जो भाई है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, ये यहाँ मतलब है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 7वां, माई मदर बेक्ड ए केक ऑन माई बर्थडे। बच्चों तुमको तो पता है कि हम सबको और आपको भी केक बहुत पसंद है। तो यहाँ जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, वो क्या करते हैं, केक बनाते हैं बर्थडे में। तो वो क्या है, वो यहाँ पे बोला गया है। देन आई गो स्विमिंग विद माई लिटिल सिस्टर, मैं स्विमिंग करने गया, किसके साथ गया, अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए वो अपनी बहन के साथ स्विमिंग करने गया। तो ये सब जो बच्चों हैं ये सब है कुछ मैच द फॉलोइंग। ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप जोड़ के एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हो, जो कंप्लीट सेंस हो, जिसका कोई मतलब हो। फिर बच्चों देखो उसके बाद कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज रेड। कोई पूछ रहा है कि कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो मैं बोलता हूँ माय फेवरेट कलर इज रेड। वैसे ही कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों दिया गया है सेंटेंसेस 2, 4 और 6 जो आंसर्स है वो उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स। दिस सेंटेंसेस which ends with a full stop, such sentences are called statements. And then which sentences ends with a question mark are called question mark. मैंने जैसे बोला था, कोई अगर तुमसे पूछता है in which school are you studying or what is your favorite color, what is your favorite food, अगर आप उसका आंसर देते हो तो that is called a statement। और वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों। इस सेंटेंस which says or states something is called a statement, इस सेंटेंस which asks something is called a question। ये डिफरेंस है बच्चों, जो तुमसे सवाल पूछा जा रहा है तो that is called a question, और जो तुमसे आंसर जो आप आंसर देते हो that is called a sentence और statement। देन बच्चों उसके बाद जो है वो बहुत इजी है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कर पाओगे, सेंटेंस समझ पाए हो। उसके बाद देखो बच्चों पेज नंबर 12 में इंसर्ट ए क्वेश्चन मार्क और ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। जैसे मैंने कहा है, कोई अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो दैट इज कॉल्ड ए क्वेश्चन, उसमें आपको क्वेश्चन मार्क देना है। बच्चों देखो दैट इज कॉल्ड ए क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज कॉल्ड ए फुल स्टॉप। दोनों ही सेंटेंस कहलाएगा, बट अभी मैंने जैसे हाल ही में कहा है जब कोई आंसर हम देते हैं दैट इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट, और जब हमसे कोई सवाल पूछता है दैट इज कॉल्ड ए क्वेश्चन। यही डिफरेंस है दोनों में। देन दिस बुक्स आर माइन, आर दिस बुक्स योर्स। ऐसे कोई अगर तुमसे सवाल पूछता है तो यहाँ पे क्या है, हमको सिर्फ पंक्चुएशन देना है और उसको कंप्लीट सेंटेंस में बदलना है। उसके अलावा अगर हम उसको पंक्चुएशन मार्क नहीं देंगे, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाएगा। फिर बच्चों उसके बाद पट्टाई में फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर, ये बहुत इजी है। इज और आर का इस्तेमाल आपको करना है और चेंज दिस सेंटेंस स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों बी, इसको आपको क्वेश्चन में बदलना है कि कोई यहाँ जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको आपको क्वेश्चन में बदलना है। मतलब he is tall, is he tall, I am 7 years old, how many years are you, or what is your age। अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम बोला सकते हो कि I am 7 years old, what is the name of your school, then you will answer that the name of our school is Gyan Jyoti Kanchanben Rasikla Vidyalaya। Where is it situated, कहाँ है तुम्हारा स्कूल, it is situated in Gartor village near Nuapada। What is your father's name, तो पिताजी का नाम बोलते तो
पहले जैसे अभी मैंने तुमको कुछ मिनट्स पहले बताया है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है दिस इज कॉल्ड क्वेश्चंस। कोई आपसे सवाल पूछता है, अगर आप उसका आंसर दे तो दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स। तो बच्चों थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। मींस कोई अगर कंप्लीट सेंस बताता हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। उसमें भी हम यहाँ 2 प्रकार की चीज पढ़ चुके हैं। अभी मैं हाल ही में तुमको बताया स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, और कुछ एक्सरसाइजेस तो मैंने आपको यहीं पे करवा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वीडियो को अच्छे से देखोगे, बुक को भी ध्यान से देखोगे, और कुछ जो एक्सरसाइज मैंने करवाए हैं उसको भी कीजिए, और जो बच गया उसको भी आप आराम से कीजिए, समझ के कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, और ये जो ग्रामर का जो सेकंड चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट किया है। बच्चों कल इंग्लिश में हम कुछ नया पढ़ेंगे, कोर्स बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, समझ पाएंगे। बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ, और यही बोल के मैं आपसे बाय बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।